Yes, I can start. Can you hear me? Yes, speak up a bit, Ashish. Is this better? Yeah. So, thank you, Arvinda, for the introduction. Uh, well, we all have witnessed the pandemic and its effect. Uh, so, one thing interesting that we noticed is uh, we have been talking about using government infrastructure is strengthening public health system, and mostly the audience was poor people who could not afford private healthcare. But during pandemic, the whole society has realized the importance of public health to a great extent because the private was absent. It did not step up to deliver. I mean, doctors refused to treat people, and there are many problems, as you all are already aware. So, for the first time in so many years, we have been trying to emphasize the importance of the public health system. But this COVID exposed the private healthcare and also uh, kind of showed that only a robust public healthcare system can deliver, uh, for instance, during the crisis that we saw during pandemic. So with that background in mind, uh, we have our health team, and we were focusing on developing our health activists so that we uh, two three objectives mainly, so that we know about our own body and what's happening to us. We are prepared to kind of handle small problems ourselves after we are, for example, checking temperature, or uh, how to control the temperature, how to identify signs of diseases, and where to go, which place to access. So that kind of thing. So that is one objective of uh, sort of uh, enabling our own cadre to take on the health work and understand health and our own body. The second important part was to access the public health system in a better way. Uh, because of the falling infrastructure of the health system, people are forced to go to private sector, and it is very expensive for our sathis. And then they resort to all kinds of unscientific practices, including Ojha Guni, uh, going to the neighborhood Jhola Chap doctor, uh, who is the only person who can kind of understands to an extent uh, diseases and can give some medicine. So we have tried to strengthen our team and to make people aware of the existing government health facilities. And during COVID, uh, I think that background is very important, because during COVID, people realized that that's the only facility they could access to without discrimination, or without uh, paying up a lot of money. Uh, so yeah, so I will stop there. So this has been our objective, to train our people and to uh, access public health system. Thanks, Ashish. अभी शो और मांडवी, आप बता सकते हैं कि अभी जो हेल्थ वर्कशॉप आप कर रहे थे और जो कार्यकर्ताओं को कैसा तैयारी कर रहे, और आगे का स्वास्थ्य का कार्यक्रम आपका प्लानिंग क्या है? ठीक है, तो हेलो एवरीबॉडी, जिंदाबाद जय भीम. I'll speak in English and Manvi di Hindi में बोलेगी. Sure, it's good to see you after many years. Hi, how are you? Better now that I see you. Okay, so yeah, so actually I also have a bus to catch in half an hour, so I'm going to quickly talk a little bit about this workshop that we just did, and then hand over to Manvi and Ashish, and then maybe we can keep the conversation rolling.
So actually, we have collaborated with Sakhi in the past. This was pre-COVID, of course, where Shakku, Bhau, Nitin have all come and done trainings with us with a bunch of women and men Sakhis. And those have been very useful, of course. But what happened was during COVID, of course, it all, for various reasons, it all sort of, there were obvious setbacks to the health program. And so then now when we were re-evaluating, we felt that, and there was a very acute need felt in the community, because wherever we'd go for our union meetings, they'd be like, fine, yes, let's work on labor rights, let's work on rations, pensions, etc. But please, let's try and revive the health scheme, because there's so many malpractices going on, and we really need help on accessing our health rights. So since that was something we kept hearing from all over, we said, all right, let's get together and try and revive the team. So we were all meeting after a very long break. There were some new faces, there were some old ones at this workshop that just happened. And this was more like, we were calling it a workshop zero, to try and see where our interests lie, what we remember from the previous process, how we wish to take this forward. Because it's very important for us that that level of ownership, that level of decision making, stay collective and be ground up right from day one. So around 40 odd women and young persons came together for this workshop, and we kept the content, the structuring, we kept a little loose. We didn't have a specific agenda except to get to know each other better, try and understand a little bit of what health and health rights mean to each of us, and then also try and discover together how we wish to take the health program forward. So that was very interesting, because it gave all of us a lot of energy. We spoke a little bit about, things like the political economy of health. So how, there might be a small infection that happens in a household or in a village. There's a small kind of, any kind of disease. And the repercussions of that, the larger repercussions of that, the structural reasons behind that. So from the micro to the macro, everyone sort of, traced it along those routes to try and understand where all the problems lay. Then we also did interesting exercises like body mapping, which is always a huge hit. We spoke about violence, we spoke about pleasure vis-a-vis the body. We try to identify what organs we know, which ones cause shame in us, and which ones we're okay and open about. We did that. We did a lot of, there was a lot of talk around pains and aches that women feel after a particular age. So those kept coming up. Then there was a lot of discussion on what is the situation of, what is the current situation of public health institutions in our localities, in our villages, in our blocks. How often are we able to access them? What are the major challenges? What is the behavior of the staff there towards us? So those were some of the discussions, and then also on which are our points of access when there is a health crisis in the family. And so some of the things that came up were, one, that you use these grandmother's recipes, so to speak. So things, household recipes that you think will fix things. Then you go to the ojhas, who will, because there's a lot of superstition around health issues. So then you go to the ojha and you hope that the spirits will be, you'll be cured of the spirits that are bringing forth the illness in you. Then we spoke about the jhola chaps, or the absolutely untrained, very little trained quacks that are there in the village, who are running these medicine shops, and also, who are claiming to be doctors and treating you.
So them, and then again, then of course the private healthcare system and the public healthcare system, and we all discussed the pros and cons of each. So yeah, so these were some of the things that we did, and yeah, so that was quite insightful for us. Helped us also realize what are some of the things that we want to focus on in the next 2-3 months. Some of the major issues that came up, for instance, were of course, lack of adequate nutrition, food and nutrition, all of that. That was also another issue that came up, which people connected immediately with health. So it wasn't just that whole absence of illness in the body, so how we are living, you know, the kind of dignity that we get, the kind of space that we get, the amount of resources we can access. So those linkages also happened, which are very nice. And yeah, and so some of the main problems that came up were, of course, a lot of out-of-pocket expenditure. So there's a lot of bribing that has to happen if one can access public healthcare systems. Then we have a free ambulance service, which is supposed to be given by the government, but then that also doesn't reach most of the villages that are, you know, in remote locations. That was another thing that came up. Then again, the government is supposed to give you a sum of 5,000 rupees for your first delivery. This is vis-a-vis maternal health, specifically for your first child. But then how you can't access that also. So there were a series of issues that came up, right from not being able to access entitlements to malpractices that are going on, to our own limitations in understanding our bodies, our wellness, our health. So yeah, those were some of the things that were sort of brought up in the workshop, and we are hoping that in subsequent workshops, some of these will get addressed, and we'll learn more and we'll know how best to intervene in these situations. तो मोटा मोटी मैंने वर्कशॉप के बारे में बताया। मैं वर्कशॉप का 2-3 फोटो दिखा। वो है क्या आपके पास? हाँ, नहीं है। तो हाँ, जरा बताइए ये सब लोग कौन है? ये दिखाते हैं? दिखाई दे रहे हैं? हाँ, नहीं दिखा, फोटो नहीं दिखा रहे हैं। ओह, लोडिंग हो रहा है, समय लगेगा। वेट 2 मिनट्स। अच्छा, ठीक है। मांडवी बहन, आप आगे करिए। आप थोड़ा सा बताइए कि हम लोग स्वास्थ्य प्रोग्राम में क्या क्या काम कर रहे हैं, गांव की मीटिंग, फिर वर्कशॉप्स, फिर ट्रेनिंग, वो सब थोड़ा सा। तो सभी साथी को जिंदाबाद। आवाज आ रहे हैं क्या? आवाज जा रहे हैं? आवाज आ रहा है। हाँ, तो हम जब गांव में जाते हैं तो जो सारे महिला संगठन से जो जुटे हुए रहते हैं, जो हर महिला मतलब संगठन का यूनियन में जुटे हुए रहते हैं, तो एक साथ बैठ के हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़ा जरूरी है कि शरीर सुरक्षा। शरीर अगर सुरक्षा नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे लड़ पाएंगे, तो उन पर बात करते हैं। तो बहुत सारे महिला होते हैं जो गांव का कल्चर है कि शर्म होना, लाज होना, तो उनके बात नहीं करना, तो हम बोलते हैं हम भी तो महिला हैं। हम कहते हैं कि कोई नहीं देखता, लेकिन मेरा शरीर को तो पूरे देखता है। तो हम इस तरह से बात करते हैं कि जमीन तो एक ही है। उस तरह से लोगों को बातचीत करके फिर हम स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं कि हम लोग सरकारी में क्यों नहीं जाते हैं। तो सरकारी में आपका आवाज क्लियर नहीं है। आप नहीं जाना, थोड़ा आ रहा है। अच्छा, तो हम आवाज से बात करें। हाँ, अभी हाँ, ठीक है। तो गांव में जाके हम बात करते हैं लोगों से, और उसके बाद फिर जो उसमें स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं कि हम लोग को सबसे बड़ी जो गांव में अंधविश्वास, वो डायन, जो झाड़ फूक, तो हम लोग अपने बच्चा को चाहे खुद को
हम अपने को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनसे हम दवाई ले लेते हैं। मेरा शरीर का एस्टिमेट, शरीर के अंदर कितना एक ताकत होते हैं, कौन ऐसी दवा हमें चाहिए, वह गांव का जो महिला होते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है। और जो सरकारी व्यवस्था होते हैं वहां तो जो सही डॉक्टर है, एमबीबीएस वाला है कि नहीं है, वह मतलब जो उनको दिखना चाहिए, जो मतलब एक जाति भावना भी अलग अलग कि डॉक्टर उनको हाथ से छूते नहीं है, वो सिर्फ मुंह से बताते हैं मेरे अंदर क्या है हमें तो पता नहीं है। अगर हमें खुद को पता होता तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। और यहाँ क्या है, जो हर जगह बिहार का अंदर में प्राइवेट, मतलब प्राइवेट डॉक्टर बहुत ज्यादा है। अब नॉर्मल में डिलीवरी होगा लेकिन उनको सीजर करवा देते हैं तो उसका जिंदगी तो और मतलब जीने का कोई लायक मतलब बेहतर नहीं हो सकता है। उनका जिंदगी जो बेहतर होने के लिए होता वो भी नहीं हो पा रहा है। जो भी जगह है हर जगह प्राइवेट झोला छाप। और जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे रहते हैं कि वह कुछ ऐसा दवाई दे सकते हैं, पानी चढ़ा देना, तो वह उनको पता नहीं रहता कि मेरा शरीर का जो पाठ पुर्जा है किस तरह से है। अगर मेरा शरीर का जो पुर्जा है उनको पता नहीं रहेगा, वो कौन दवा कहाँ नुकसान करेगा उन्हें भी पता नहीं रहता है। तो इससे जो है काफी मतलब हम लोग को झेलना पड़ता है। अगर एम्बुलेंस आते हैं वो कहते हैं कि हम सरकारी व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन वहां भी पैसे लेते हैं। जैसे सिटी एक्शन का भी अभी मतलब बहुत हम लोग को जो परेशानियां होते हैं, काफी मतलब हम लोग को अब डॉक्टर सही समय से दवा नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग कहें कि कम से कम हर महिला समझ पाए कि हम ओझा के चक्कर में नहीं जाए, जो ओझा के चक्कर में, इसलिए कि झोला साहब तो पूरा जानकारी होते नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि बोलता है कि चलो तुम हम दवाई दे दिए तुम झाड़ फूक करा दो। तो ये दोनों नुकसान झोला छाप से होते हैं। वो अपना भी पैसा कमा लेते हैं और साइड से जो गांव का ओझा है उनको भी कमाई उतना ही दे देते हैं। और जब बाकी उनकी बीमारी जब बढ़ते हैं तो उनके पास में उतना आर्थिक स्थिति होते हैं जो बड़ा डॉक्टर के पास पहुंच नहीं सकते। अगर उस लेवल पर सरकारी में जाते हैं तो उनको जो उम्मीद और भरोसा है वो तो टूटा हुआ है कि हमने एक बार गए और हमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो जो अच्छा, दवाई ये भरोसा वापस बढ़ाने के लिए आपको लगता है कि ऐसे जो ट्रेनिंग साथी देने वाले हैं वो काम पे आएगा? तो बहुत कम। हाँ, तो आपको और अभी जोड़ना है या मैं शकु को बुलाऊं ये साथी की तरफ से? बता दीजिए उनको, फिर सभी को बता अच्छा, शकु। हाँ, अभी हम बिहार के साथियों से ये सब अनुभव सुनाए हैं। तो अभी आप ये पूरा पब्लिक हेल्थ की कॉन्टेक्स्ट में रख सकते हैं। ये अभी जो लोगों को एक्सपीरियंस जो बिहार में है ऐसे भी महाराष्ट्र में भी हो रहा है, तो इसी की कॉन्टेक्स्ट में जो जन आरोग्य समिति का क्या क्या रोल है, क्या कैपेसिटी है, और वो ट्रेनिंग आप बिहार में कैसा ले जा सकते हैं? हाँ, भाऊ आप शुरुआत करेंगे या? जरूर शकु। हेलो एवरीबॉडी, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग, सम टेक्निकल एरर। कैसे आप? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, अभी आवाज आ रहा है। ओके। मांडवी दीदी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बिहार की परिस्थिति का जायजा लिया है, क्योंकि हमने 4 ट्रेनिंग बिहार में किए हैं 2000 मुझे लगता है 19 में। और आपकी जो समझ बढ़ी है
हेल्थ के बारे में, वो सुनकर बहुत अच्छा लगा और आपको देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत कुछ अच्छा काम करना चाहती हो। तो हमने अभी झोला छाप डॉक्टर के बारे में मांडवी दीदी ने कहा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, सभी जो 21 पार्टिसिपेंट यहाँ है। मैं, शकु और हमारा एक साथी जो था, हम बिहार में ट्रेनिंग के दरमियान कुछ ब्लॉक में हेल्थ सिस्टम देखने गए थे। हमको तीनों को अलग अलग जगह में खाना खाने के लिए बुलाया गया था और मेरे को बुलाया गया था एक झोला छाप डॉक्टर के घर में। मैं जहाँ खाना खा रहा था वहां बहुत सारी सलाइन की बोतल का ढीक लगा हुआ था। मतलब कम से कम खाली सलाइन की बोतल 100-150 होगी। मैंने उनको पूछा, भाई साहब ये क्या है? फिर उसने बोला कि मैं जो है ना, मैं डॉक्टर हूँ। मैं बोला, आप कौन से डॉक्टर है? वो बोले कि मैं एक सर्जन है यहाँ के, उनके यहाँ 6 महीने का मैंने प्रैक्टिस किया है और उसके बाद मैंने डॉक्टर की शुरू की। मैंने बोला, आपके पास कोई डिग्री है? वो बोला, नहीं कुछ नहीं, बस बिहार में ऐसा ही चलता है। फिर उन्होंने कहा, बिहार सरकार में तो ऐलान कर दिया है कि ये जो क्वैक डॉक्टर जो है उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट देंगे और डॉक्टर की गांव में इलाज करने को परमिशन दी जाएंगी। मैं काफी हक्का बक्का हो रहा है और मेरे को पता है वहाँ खाने में अंडा ऑमलेट बहुत सारी मतलब अलग अलग पकवान थे और मैं इतना ये हो गया कि अरे बाप रे, ये तो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। और मैं समझ गया बिहार की स्वास्थ्य की स्थिति कितनी गंभीर है। और फिर हमको समझ में आया कि यहाँ बहुत काम करने की जरूरत है। हमने 4 ट्रेनिंग किया। किनका किया? जन जागरण शक्ति संगठन के जो कार्यकर्ता है, गांव लेवल की जो लीडर्स है, उनका ट्रेनिंग किया। उनको हमने शरीर के बारे में बताया, हेल्थ सिस्टम के बारे में भी बताया, मॉनिटरिंग क्या है उसके बारे में बताया। लेकिन ये जो क्वैक डॉक्टर हजारों की तादाद में बिहार में है और ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, मतलब पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं। हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया कि इसको हम क्रैक कैसे करें। और अभी अरविंदा जी ने अरविंदा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जन आरोग्य समिति, हेल्थ वेलनेस सेंटर, आरोग्य वर्धिनी केंद्र जहां कहा जाता है, केंद्र शासन का एक प्रोग्राम है आयुष्मान भारत कार्यक्रम। उसके अंडर पूरे भारत देश में जो भी उपकेंद्र है, मतलब सब सेंटर है, गांव के जो सब सेंटर है, उनको HWC, हेल्थ वेलनेस सेंटर या आरोग्य वर्धिनी केंद्र कहा जाता है। उन्होंने 6 गोले बना दिए हैं, बहुत अच्छा सा पेंटिंग कर दिया है। पहला बना है वेस्ट बंगाल में, नहीं सॉरी छत्तीसगढ़ में पहला। वसुंधरा जी यहाँ है, वो यवतमाल में आई है विजिट को। उन्होंने जो आयशा खातून और उनके जो साथी आए थे झारखंड मुक्ति परिषद के, उन्होंने भी हमको ये कहा था कि पहला हाय हाय हाय, कैसे हो आप? हेलो हेलो, बस बहुत अच्छा अच्छा लगा लग आपको रहा है यहाँ आपकी आवाज सुन देखकर। के। तो बात ये हुई कि छत्तीसगढ़ में पहला वो मॉडल सब सेंटर बना और पूरे भारत देश में ये सब सेंटर बना है, हेल्थ वेलनेस सेंटर, जहाँ जच्चा बच्चा से बीपी डायबिटीज से लेके बच्चों को दवाई दी जाएगी। लेकिन परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है कि ये घोषणा है, कार्यक्रम है, इसका असर अभी भी ठीक से नहीं है। महाराष्ट्र और बिहार कंपैरिजन करें तो 100 में से बिहार 1% पे है, महाराष्ट्र जो है वो 10% में है। महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी तरीके से ये नहीं चल रहा है। हमने कोशिश की है कुछ जगह, कुछ ब्लॉक में, कि जो HWC है, हेल्थ वेलनेस सेंटर, उसको जहां वो जन आरोग्य समिति है उसको एक्टिवेट करें और कुछ उनके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य सेंटर जो है अच्छे रूप से काम करे। हमारा कोशिश वही रहेगा बिहार में भी जन जागरण शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ। पहले तो हमको ढूंढने पड़ेंगे
कि हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर कहाँ है क्या नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। अगर जहाँ है वहाँ जन आरोग्य समिति कहाँ है, जन आरोग्य समिति नहीं है तो उसको हमको पहले तो फॉर्मेशन करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। फिर हमारे कार्यकर्ताओं को उनको समझाना पड़ेगा कि भाई AWC क्या है, हेल्थ वेलनेस का है, और जो PHC है उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहा जाता है। तो इनको हमको फर्क समझाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को हमें बहुत काम करना पड़ेगा। हम जिस ब्लॉक में काम करे, अरिया डिस्ट्रिक्ट में और कुछ डिस्ट्रिक्ट में कार्य समझ देनी पड़ेगी कि भैया ये आयुष्मान भारत कार्यक्रम ये है, उसके अंतर्गत HWC ये है, फिर जन आरोग्य समिति का कार्यक्रम ये है, और HWC में जो CHO होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। हाल ही में मैंने एक कोविड के दरमियान का एक पेपर पढ़ा है बिहार के बारे में, जो CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर बोलते हैं वहाँ हमारे यहाँ, उनके बारे में उन्होंने कहा है, वो खास तौर पे पटना के बारे में, पटना डिस्ट्रिक्ट के बारे में उन्होंने कहा है। जब कोविड आया था, कोविड अभी भी शुरू है हमारे देश में, लेकिन उस जिस तीव्रता से उस दौरान था, उस तीव्रता से अब नहीं है। कोविड आया था तो इन्होंने कोविड के दरमियान इन CHO को ट्रेनिंग किया था और उन्होंने कहा कि उनकी बहुत मदद हुई है, ऐसा हुआ है, हमारे हेल्थ सिस्टम कैसे स्ट्रेंथन हुई है। और मैं जब ये सुन रहा था और मैं वो सब स्टडी मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मुझे एकदम हक्का बक्का हो गया कि भैया ये अगर इतना बोल रहे हैं सरकार की CHO इतना काम करे है, इतने CHO हमने अपॉइंट किए, ये किए। पिछली बार हमने हमारे आशीष भाई से कुछ बात रही, तो आशीष भाई बोले मुझे HWC पता है लेकिन जन आरोग्य समिति पता नहीं है। मैंने कई कई जगह HWC देखा है। तो ये हमारी बिहार की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि हमें अगर काम करना है तो पहले तो बेसिक सिस्टम क्या है कि हेल्थ सिस्टम कैसे वर्क करती है और हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं वापस दोहराता हूँ, महाराष्ट्र और बिहार की स्थिति में काफी अंतर है। शो के साथ भी हमने काफी फोन पे बात की इस बारे में, और जब तक हम हमारी जो बेसिक हेल्थ सिस्टम जो है वो समझ नहीं पाते। बिहार में हमने 2000 काम किया है, ट्रेनिंग किए है, उसमें जैसे हमने हमारी मांडवी दीदी ने कहे कि बॉडी मैपिंग से लेके एनीमिया से लेके बच्चा कैसा पैदा होता है, हेल्थ के बारे में ये सब हमने बात की है। लेकिन इसके बारे में हमको यहाँ तक करना नहीं पड़ेगा, तो तोड़ना पड़ेगा कि किसी कोई औरत मतलब प्रेग्नेंट है तो उसको कौन सी स्कीम मिलती है, कौन सी सर्विस मिलती है, और उसको मिलने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब हम HWC और जन आरोग्य समिति के बारे में ट्रेनिंग तो करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हमको वापस शुरुआत से ट्रेनिंग करना पड़ेगा का हमारा हेल्थ सिस्टम कैसे वर्क करता है। और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये होगा कि क्वैक डॉक्टर्स जो है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र में जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि देखो महाराष्ट्र में क्वैक डॉक्टर्स है या नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो विदर्भ रीजन है, जैसे नागरिक रीजन है, वहाँ बहुत सारी बंगालीज कॉलोनी है। जो बांग्लादेश जो वार हुआ था उसके बाद बहुत सारी बंगालीज कॉलोनी विदर्भ में शिफ्ट हुई है। तो वहां से जो कुछ लोग हैं वो बंगाली, हमारे यहाँ बंगाली डॉक्टर्स बोला करते हैं, जैसे क्वैक या झोला छाप बोला करते हैं, बिहार में क्वैक डॉक्टर्स बोला करते हैं। तो वहाँ हमारे यहाँ भी है, लेकिन इतना बड़े पैमाने पे इन लोगों का प्रभाव नहीं रहा है। उसको स्थानिक लोग जो है तुरंत एड्रेस करते हैं और कुछ करते हैं। तो महाराष्ट्र और बिहार की परिस्थिति में काफी अंतर है, और उस अंतर को हम समझ के हमको कुछ काम करना पड़ेगा, और उसी के बारे में मुझे लगता है कि हम आगे ट्रेनिंग करेंगे
1 साल तक हमारी कोशिश रहेंगी कि अलग अलग ट्रेनिंग में अलग अलग बात हम कैडर तैयार करने की बात कर रहे हैं, जहां भी हमारे जिन जिन ब्लॉक से हमारे लोग रहेंगे ट्रेन करेंगे व्हाट इज अ हेल्थ स्कीम, वो कैसे वर्क करती है, हमारे WC क्या है, जन आरोग्य समिति क्या है। मैं वापस दोहराता हूँ, जन आरोग्य समिति को हमको रन करने में बिहार में काफी समय लगे, इस साल में तो होगा ही नहीं, लेकिन हम हेल्थ स्कीम समझाएंगे। और जहाँ WC जहाँ CHO अपॉइंटेड है, यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जहाँ CHO अपॉइंटेड आरोग्य समिति एक्टिव होती है, तो हमको वो देखना पड़ेगा। और फिर वो हमारे जो अरेरिया डिस्ट्रिक्ट है और कुछ ब्लॉक है और कुछ और डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो वहाँ की स्थिति का जायजा लेते हुए हमको इस बारे में ट्रेनिंग करना पड़ेगा। मेरी बात यहाँ खत्म होती है। शकु, आप कुछ जोड़ना चाहती है तो प्लीज जोड़िए। थैंक यू, वो काफी सारी बातें आपने कवर की है। तो मतलब मेनली जो आपने एंड में रखा कि जन स्वास्थ्य जन आरोग्य समिति के बारे में हम जो कह रहे हैं, तो उसके बारे में हमको शायद टाइम लगेगा। ये 1 साल की बात नहीं है, ये प्रोसेस की बात है। साथ ही साथ में हम जो हेल्थ एक्टिविस्ट मतलब संगठन भी ये चाहता है कि हम इस बार ऐसा प्रोग्राम बनाए जो सस्टेनेबल हो, और हम भी यही चाहते हैं कि साथी की जरूरत ना पड़े कि बार बार हम बिहार आए या उसका ट्रेनिंग करें। तो क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं, ये कोशिश की शुरुआत कर सकते हैं कि हमारे संगठन के साथी ही आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में, जो भी है, मतलब वो हम एक अच्छा खासा प्लान बनाएंगे कि हेल्थ एक्टिविस्ट इतनी स्ट्रांग हो कि वो खुद वहां के संगठन का पूरा हेल्थ राइट्स का काम की जिम्मेदारी ले। साथ ही साथ में वो और भी मतलब अभी हमको लिमिटेशन होगी कि हम सारसा, कटिहार और अररिया 3 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम में हम इतने सारे एक्टिविस्ट को नहीं साथ में ले जा सकते। तो क्या हम ये एक्टिविस्ट ऐसे ट्रेन करेंगे जो कंटिन्यू मोड में संगठन का हेल्थ राइट्स का काम का जिम्मा उठाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात रही। और दूसरा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम समझ लेना। पब्लिक हेल्थ सिस्टम जिस तरीके से हम अभी अनुभव कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत स्पीड से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इसके चलते बीच में जो स्कीम्स इन्होंने लाई है, तो ये स्कीम समझ लेना और स्कीम्स को अवेल करना, और साथ ही साथ में पब्लिक हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथन होने की डिमांड करना। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारे हेल्थ एक्टिविस्ट का हो, ये भी एक कोशिश ये ट्रेनिंग वर्कशॉप, कैपेसिटी बिल्डिंग, पर्सपेक्टिव बिल्डिंग वर्कशॉप में रहेगी। साथ ही में मांडवी दी ने भी बताया, शो ने भी बताया कि बॉडी मैपिंग बहुत बहुत ही बेसिक मुद्दा है कि जिस शरीर के साथ हम रहते हैं, जिस शरीर से हम एक समाज निर्माण करते हैं, लेकिन वो शरीर की इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं होती है। तो बॉडी मैपिंग से लेकर एनीमिया, वाइट डिस्चार्ज, इस सब विमेन हेल्थ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण चीजें थी। साथ ही में हम सिंपल मटेरियल डेवलप करेंगे जो हिंदी में हो। ऑलरेडी साथी के पास कई सारे डेवलप किए हुए टूल्स और मटेरियल है, लेकिन हम जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं ये एक्टिविस्ट का नहीं है। अभी हम जो शुरुआत करेंगे वो गांव की एक महिला रहेगी, भले वो संगठन के बाकी कामों में जिम्मेदारी लेती हुई एक्टिविस्ट रहेगी, लेकिन हेल्थ एक्टिविस्ट के लिए हमको अभी एकदम ABCD से शुरू करना होगा।
तो हमको एक सिंपल तरीके से मटेरियल डेवलपमेंट, चाहे वो स्टिकर्स हो, चाहे वो पोस्टर्स हो, चाहे वो जिंगल्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए छोटी छोटी कहानियां हो, तो ये करने की भी कोशिश ये प्रोग्राम में रहेगी इस साल के। थैंक यू। हाँ सॉरी, एक मुद्दा था कि लास्ट टाइम हमने जब ये काम किया था, आई थिंक 3 या 4 ट्रेनिंग सेशंस किए थे, और ये ट्रेनिंग सेशंस का कई सारा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा था। मतलब एक छोटा पब्लिक डायलॉग करने की कोशिश की, एक सीरियस घटना घटी तो उसके बाद संगठन ने धरना दिया हेल्थ इंस्टीट्यूट में, और तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा कि हमने कई सारे हेल्थ इंस्टीट्यूट को विजिट की थी, और इससे एक्टिविस्ट का मतलब ये एक प्रोग्राम ही है, और इससे एक्टिविस्ट का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ये भी एक कंपोनेंट ये वर्कशॉप में रहेगा इस साल के। थैंक यू। थैंक यू शकु। थैंक यू भाव, शकु और सब बिहार साथियों। अभी अगर किसी को सवाल है तो स्पेशली शिवांगी, विकास, कीर्ति, but anyone actually. And I also just wanted to maybe ask Minal to say a few words. Minal, आप पिछले साल साथी का जन आरोग्य समिति को विजिट किया, तो आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ, डेफिनेटली। आई थिंक कि मैं हिंदी में बात करूँ। हाँ, हिंदी में ओके, हो सके तो या सो जो मीटिंग हमने अटेंड की, इट वाज रियली सच एन बहुत ही बड़ी आई ओपनर थी मेरे लिए, क्योंकि ये जन आरोग्य समिति मीटिंग्स वो 1 या 2 महीने में करते हैं, और मुझे समझ में आया वहां पे बैठ के कि सब इतने इन्वॉल्व थे, सब एरियाज, विलेजेस के सब एरियाज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इवन स्कूल के बच्चे थे वो जन आरोग्य समिति में। तो वो देख के मुझे सरप्राइज लगा कि एक बच्चे ने बोला कि मेरे स्कूल में टॉयलेट नहीं है, और कुछ महीने के बाद टॉयलेट आ गया। एक फिर अभी का रीसेंट रिक्वेस्ट था कि ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो वो जन आरोग्य समिति अभी आगे बढ़ा रही है। और the representatives from all the villagers, right from the sarpanch to the police to the children, asha workers, teachers, बहुत ही एनर्जी हमने महसूस की वहां बैठ के, क्योंकि सब अपने हेल्थ इश्यूज लेके डिस्कस कर रहे थे। इट वाज फैसिनेटिंग कि इतना ऑर्गेनाइज था पूरा सिस्टम, और ऑलरेडी उन्होंने बताया कि इन सब मीटिंग्स के कारण लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन आते हैं, बूढ़े लोग भी आते हैं, द अवेयरनेस ऑफ द आंगनवाड़ी, तो मैल न्यूट्रिशन भी बहुत ही रिड्यूस हो गया है, वो जो सेट ऑफ विलेजेस हम जो अटेंड कर रहे थे। तो इट इज सो ऑब्वियस दैट द वर्क दैट साथी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो उनके साथ काम कर रहे थे, और उनको बता रहे थे कि ये स्कीम है, ये 1.5 लाख फ्रॉम द स्टेट और 5 लाख फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट, आप यूज कर सकते हो। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। तो अरविंदा, इट फेल्ट मैजिकल कि ऐसी मीटिंग जो महीने में एक बार या आई थिंक 2 महीने में एक बार जो हो रही है, उससे कितने वो जो मीटिंग में हम गए थे वो 6 विलेजेस की थी, तो उनसे वो डिस्कशन सुन के और जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे थे, इट वाज ऑसम टू सी कि साथी ने इतना इम्पैक्ट और एजुकेशन लाया है
विलेजर्स को। तो आई मीन एक मुझे याद है एक प्रश्न हमने पूछा था कि अभी मैल न्यूट्रिशन ये सेटअप विलेजेस में कितने हैं, और somebody ने बोला कि कुछ नहीं है, देयर इज नो मैल न्यूट्रिशन। एक उदाहरण और था कि एक कॉम्प्लिकेटेड बच्चा वाज प्रमोटेड टू द बिगर हॉस्पिटल। एक दूसरा उदाहरण था जो किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया जल्दी लाइफ में। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जन आरोग्य समिति और उनका जो बेनिफिट्स विलेजर्स को आ रहा है, इट्स इनक्रेडिबल। ये जो एजुकेशन जो भाव साहब और शकु दीदी ने बोला, आई थिंक इट विल गो फार बिहार में भी। सो दैट्स इट अरविंदा। Yeah, thanks. Thank you, Meena. और किसी को सवाल है? Arvind, I just wanted to also share something. Sure. Sheku Bau, very nice to see you all again. And Ashish and everybody from JJSF, very glad that your collaboration is working. तो अच्छा लगा मुझे बिहार के सब साथी को भी मिलके यहाँ पर वापस। अरविंदा और मैं आए थे बिहार कुछ 4-5 साल पहले साथी के साथ, और आप सबको मिले थे तब। और अब ये कोलैबोरेशन जो है आगे बढ़ रहा है, उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मुझे सिर्फ एक बात कहना था कि पहले का ट्रेनिंग जो हुआ है साथी में, वो शायद गांव वालों को अब तक याद रहेगा। तो मैं सोच रहा था कि अगर आशीष भाई और तन्मय और कमायनी दीदी सब लोग जो है, मानवी दीदी सब एक अगर टीम एक बने या बन गया होगा ऑलरेडी, जो तय करे कि साथी के साथ कि इन विषयों में हम अब जानकार हैं, ये विषय अगर आप बताएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर शायद मतलब ज्यादा मीनिंगफुल ट्रेनिंग होगा। कुछ गिव एंड टेक बातचीत हो तो सिलेबस डिसाइड करने से पहले, यही मुझे सजेस्ट करना था, ताकि मतलब ट्रेनिंग वापस और रिपीट ना हो। जो चीज उनको ऑलरेडी मालूम है वो वही वापस ना हो। Ravinda? Yes, Dr. Bhagat. Yeah, just a couple of things to say. First, of course, the presentation has been extremely impressive. And I have to say, like just Minal said, I am surprised that this is going on in Bihar. Because normally, Bihar is generally at the bottom of almost everything. So if the villagers in Bihar are rising to get their health, there is great hope for rest of India also. So my deep thanks to all of them. But the second thing I did want to point out was, about 2 weeks ago, Vasu introduced us to these models which can be used by people to understand their bodies better. Anatomical models. And Vasu said she can try and get them and distribute them and so on. And AID is working on that. I think that would be wonderful to have those models there, because as two of the ladies said, we don't understand our bodies. One way to understand the body is to have a model which you can take apart and see what is everything inside. I have to leave now, so I just want to say to all of you, God bless you, God bless India, God bless Sathi. Take care. Thank you, Dr. Bhagat. Okay, it's almost, it's getting very late in India. We probably can stay on for maybe 5 more minutes, or even wrap up if there are no more questions. शकु और भाव, अभी जो डॉक्टर भगत ने कहा, वो अगर गांव में ट्रेनिंग करने के लिए अगर anatomical models की जरूरत है, तो we can help you get them. हाँ अरविंद,
बहु आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस अरविंदर, श्योर। तो उसकी बहुत मदद हो रही है। श्योर। उसकी बहुत मदद होगी और हमने देखा है। मेरी आवाज आ रही है ना अभी सभी को? अभी हमने जो yeah. बहुत तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। जेएस के कार्यकर्ताओं के साथ उसकी बहुत मदद हुई है। अच्छा। बाकी लोगों को आती है क्या? एक्चुअली नहीं, तो नहीं है। लोगों को कुछ आ रही है, आपको शायद कुछ। ओके ओके, 1 मिनट। Uh-huh. Yeah, and before we go, अभी आ रही है। yeah. अभी बताइए अगर। 1 मिनट। अभी आ रही है आवाज? ठीक है, कोशिश तो करो। अभी आवाज आ रही है ना मेरी? या ओके। तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत मदद होगी। हमने जो 3-4 ट्रेनिंग की है बिहार में इसके पहले, मांडवी दीदी जिस तरह से बात कर रही थी, मुझे लगता है उसका असर दिखाई दे रहा है। तो श्योर हम इसके बारे में जरूर ये करेंगे। और अभी हम क्लोज करने से पहले शो और मांडवी दीदी और आशीष, आप फाइनली कुछ बात रखिए प्लीज। और JJS से कौन? there's another person who joined. Okay, Ashish, do you have any closing remarks? So, Mandvi Didi. I think we have covered what we had to. Okay. The health work, it's very fundamental, both health and education. Our health is much. Yes. Sorry, everyone. I got. Thanks, आशीष। मांडवी दीदी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं अब हम बंद करने से पहले? देखिए, जो बात है काफी तरह की बात तो आ ही गए हैं। आवाज जा रहा है क्या? आवाज आ रही है। हाँ, तो जो बात निकल के आना था वह तो आ ही गए हैं। आगे फिर होगा ट्रेनिंग का बाद, फिर हम लोग आगे का देखेंगे। मतलब जैसे जैसे ट्रेनिंग होगा, हम लोग कोशिश रहेगा कि बिहार जो काफी पिछड़े इलाका है, उनको स्वास्थ्य पर किस तरह से अच्छे से बेहतर मिल सके, और हम लोग का यही कोशिश रहेगा। अच्छा, सब लोग अगर एक बार वीडियो दिखा सकते तो हम। तो हम सब बहुत इंटरेस्ट से देखने वाले आगे की साल में आपका ट्रेनिंग। और अगर आप लोग कभी ऐसा फोटो और वीडियो भी भेज सकते हैं तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और कीर्ति और Ravi Yadav, Benil, and okay, I think Shivangi might have left. Yeah, so we will meet, again, and but if you don't have any last chance, it's 12:31. Any questions? Okay, मांडवी बहन, आप सब पूरा एकदम साफ दिखाया तो सब लोगों को सब समझ में आ गया। और भाव और शकु, thank you very much. Hi Shaku, nice to see you. Thank you for coordinating this, Sarvinda. Thanks everybody. Thank you. Oh, hi Vasu, nice to see you. Okay, thanks. I've been typing. I don't know if people were reading, but I've been typing about the similar effort by the other group as well. And I'm hoping there is
cross pollination. Yeah, if they're also conducting Janarogya Samiti, that'll be excellent. All right, thanks everybody. We'll keep you posted. Thank you. Bye. Yeah, I was thinking